Okay, so myself Aprupa Guho. Today I have to discuss on again inolate chemistry. Why? Because already you know that is in CSIR net already passed. WB said that should be passed, and the upcoming exam that should be GATE exam 2026. And also not only that, there must be BARC exam. So many exams are there. But remember that in जो CSIR नेट में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादातर कैरोथर्स का जो क्वेश्चन होता है जो वो ज़्यादा फॉलो होता है. ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, जो कैरोथर्स का जो क्वेश्चन है वो मैं सॉल्व कर दूंगा. ठीक है, उसके बाद रेडिन एंड obviously there must be some other standard book of physical chemistry, organic chemistry are also there. I will cover all the topic. Okay, and not only that, there must be in WB set. जो WB set का जो इस बार का जो एग्ज़ाम था मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, तो वो भी मैं करवा दूंगा. ठीक है. Okay, so now I have to start with inolate chemistry. Okay, so myself Apurva Guho, today I have to discuss on inolate chemistry. Okay, so first one, there must be question arises, what is inolate? Inolate क्या होता है? Okay, so first one, now I have to start. Okay. Okay, so there must be the question is generated, what is inolate? What is inolate? So already मैंने क्या बोला था, जब भी कोई न्यू टर्म आएगा यू हैव टू एनालाइज द नेम. ओके, ज़्यादातर केस में क्या होता है, आपका जो नेम होता है वो नेम ही आपको ये आइडिया दे देगा कि वहाँ पर वो एक्चुअली वो क्या सिग्निफाई कर रहा है. ठीक है, सो व्हेन वी गेट द नेम इनोलेट, देयर मस्ट बी, यू कैन थिंक अबाउट दैट मे बी there must be in is there. Okay, in means there must be some double bond is there. Okay, and the respective this olate, there must be more or less, there must be some O negative also there. Okay, so the compounds which having both of these, that is double bond along with O negative, there must we have to call as this is inolate. Much more better, sometimes you get the name that is inolate, not inol. Okay, inol means what? There must be some in and there must be some all. That means in means there should be some double bond is there. All means there must be some OH is there. And when you abstract this hydrogen from OH, you get ultimately inolate. Inolate कहीं कोई न्यू चीज़ नहीं है, इनोल से ही इनोलेट होता है. ठीक है, जब आप इनोल देखोगे वहाँ पर एक OH होगा, वो OH का हाइड्रोजन व्हेन एब्स्ट्रैक्टेड, देन वी हैव टू से दिस इज एज ए इनोलेट. ओके. ओके, okay, so now I have to start with this inolate. Why inolate is very much important? Because many more reaction that should be described, that should be understood on the basis of inolate. आपका जो होता है कोई भी कीटोन सोचो, CH2 C double bond O OAT and C double bond OAT, एक चीज़ है, right? And also you can write this that way, that is CO negative, this is H, C double O OAT. Okay, and also C double bond O, that is C double O OAT. Okay. Okay, so now the question is there, what is the difference? आप जब देखोगे, there must be this oxygen having lone pair, and this lone pair that should be coordinate. So here this oxygen is much more reactive in that nature. Okay, यहाँ पर कौन रिएक्शन कर रहा है? ऑक्सीजन रिएक्शन कर रहा है, right? Oxygen is much more reactive, oxygen having lone pair, and that always be try to donate and try to coordinate with other thing. Okay, so in that first
जो कंपाउंड है, कंपाउंड ए, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कौन? ऑक्सीजन. ओके, बट हियर यू कैन सी दिस O नेगेटिव दैट शुड बी डिलोकलाइज. कोई भी आपका एटम बोलो, एलिमेंट बोलो, वो नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को लेकर ज़्यादातर टाइम नहीं रहेगा. ठीक है, वो हर वक्त कोशिश करेगा न्यूट्रल होने का. आपके लाइफ में जब कोई ट्रैवल आता है, सपोज एनी ट्रैवल आर कम इन योर लाइफ, देयर मस्ट बी, यू ऑलवेज ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट? यू नेवर बी स्टे, यू नेवर बी want to stay with your problem for a longer time. Okay, you always having the tendency to solve the problem, right? आपके छत से क्या हो रहा है? बारिश का पानी आ रहा है. तो आप ऐसा ऑब्वियसली आप सोचोगे कि बारिश कैसे बंद करें, राइट? आप ऐसा नहीं होगा कि बारिश का पानी आते रहे और मैं ऐसे रह जाऊंगा. तो ऐसा ज़्यादातर टाइम में नहीं होता है. आपका प्रॉब्लम आप सॉल्व करने का कोशिश करते हो, राइट? ऐसा ह्यूमन टेंडेंसी होता है. तो ये हम लोग का जो केमिस्ट्री का जो एलिमेंट होता है, उसका भी टेंडेंसी होता है, वो ज़्यादातर टाइम नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज को लेकर वो नहीं रहना चाहता है. वो ज़्यादातर केस में न्यूट्रल होने का कोशिश करता है. ठीक है, आप बोल सकते हो दैट इज ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन हैविंग द नेगेटिव चार्ज, दैट इज मच मोर स्टेबल, बट दैट इज स्टेबल ओनली इन द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कौन सा मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कौन सा लेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ऑन दैट पर्पस यू हैव टू कंसिडर दैट इज electronegative element having negative charge and electropositive element having positive charge are more contributing hybrid structure, resonating hybrid structure. but resonating hybrid structure ही एक compound नहीं होता है. ठीक है, एक compound ज़्यादातर केस में न्यूट्रल होता है, पर जब वो रेजोनेंस में आता है तब वहाँ पर चार्ज सेपरेशन होता है. और on the basis on charge separation, most of the cases we have to consider which one is more contributing, which one are less contributing. That is the defined factor. ठीक है, आपका जब कुकिंग होता है, कुकिंग में आप आपके गेस्ट को खाना देते हो, तब एकदम पक्का खाना आप देते हो, राइट? एकदम अच्छे से बॉयल होकर, अच्छे से प्रिपेयर होकर जो खाना होता है, वो खाना आप देते हो. पर वो खाना होने के बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है. ठीक है, राइट? उस प्रोसेस में कोई एक प्रोसेस ज़्यादा वाइटल होता है. कभी कभी वो नमक देना ज़्यादा वाइटल होता है. कभी कभी अगर वो आप मीठा आप प्रोड्यूस करते हो, तो वहाँ पर चीनी देना ज़्यादा वाइटल होता है. ठीक है, तो वैसा चीज़ होता है रेजोनेंस में, जो कोई एक रेजोनेंस हाइब्रिड ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है. पर ऐसा नहीं है वो रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर ही एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है. दैट इज़ नॉट दैट. एक्चुअल स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ द केसेस आर न्यूट्रल वन. Okay, we can visualize as a charge separation, but actually they are neutral one. Okay, so O negative charge that should be delocalized, and that's why this carbon bears negative charge and these carbon react. So here the bond formation from carbon with the other atom, not the oxygen. Okay, जो A वाला compound है वहाँ पर ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है. जो B वाला कंपाउंड है वहाँ पर कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, this is the first difference. The second difference, the A compound, in the A compound there must be the double bond O that should be coded. अगर ऑक्सीजन इंटरेक्ट करे सपोज AlCl3 के साथ, राइट, तो दिस बॉन्ड शुड बी weak. Okay, you can use defined, this bond should be weak, right? So that means the carbonyl bond, this carbonyl that should be participate here. Okay, not a double bond. Okay, but here this you can, आप क्या देख रहे हो? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो रहा है. आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि इस डबल बॉन्ड ही यहाँ पर ब्रेक हो रहा है, राइट? दैट मीन्स व्हाट? देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड दैट शुड बी इंटरैक्ट. ओके, तो दिस इज कॉल्ड इनोलेट and this is called the carbonyl compound. Actually they are same. Actually they are same because of resonating structure. आप इस हाइड्रोजन को अगर एब्स्ट्रैक्ट कर लो तो वहाँ पर एक इनोलेट फॉर्मेशन होगा. ओके, सिर्फ आपको एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना है. ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो, जो मैंने बोला
हाइड्रोजन COO. आप अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हो, इससे ही प्रोड्यूस करना चाहते हो, वो भी हो सकता है. वहाँ पर इनोलेट प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पर इनोल प्रोड्यूस होगा. कैसे? दिस हाइड्रोजन go this way and there must be the resonating structure type, that is must be double bond COH OAT COO. Okay, this is called normal carbonyl compound and this is called enol. Okay, this is carbonyl. Okay, so this is difference is what? That is only the hydrogen the place of the hydrogen that should be changes. Okay, and now you can abstract this hydrogen you can abstract, this hydrogen can you abstract. अगर A वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाए तो इसको हम बोलेंगे क्या? इनोलेट. अगर हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट ना हो तब हम बोलेंगे इनोल. राइट? ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट. सो फर्स्ट वन रिमेंबर दैट आपका जो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है इनोलेट फॉर्मेशन. ओके, इनोल तो हो जाता है पर इनोलेट फॉर्मेशन ज़्यादातर केस में कैसे डिपेंड करता है? एसिडिटी, हाई एसिडिटी. ओके, सो व्हेन यू गेट द कंपाउंड दिस, देयर मस्ट बी this hydrogen, these two hydrogen, there must be carbonyl should be there obviously. Okay, maybe one carbonyl, maybe two carbonyl, but there must be, when you get any electron, दो कार्बोनिल भी हो सकता है, एक कार्बोनिल भी हो सकता है, जो भी हो आपका वो अलग बात है. ज़्यादातर किसमें एक कार्बोनिल भी हो सकता है. ठीक है. सो ऑन दैट केस रिमेंबर दैट अगर आपका ये जो अटैच ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा इजी होगा. सॉरी, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन क्या होगा? ज़्यादा इजी होगा. ठीक है, क्लियर? And when you get that is electron donating group, there must be not the hydrogen abstraction so much easier. ओके, आपका इलेक्ट्रोजन ग्रुप हो रहा है इसलिए ज़्यादा पुशिंग हो रहा है. सो जो हाइड्रोजन यहाँ पर बॉन्ड है वो भी पुशिंग हो जाएगा. ए हाइड्रोजन लूजली बाउंडेड हो जाएगा, ज़्यादा अच्छे से अटैच नहीं होगा. सो इजीली टू रिमूव. आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब होता है तो क्या होता है? यहाँ पर कार्बोनिल होगा, यहाँ पर जो भी कार्बन, यहाँ पर भी पुश होगा, यहाँ पर भी पुश होगा. ये जो हाइड्रोजन है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर भी पुश होगा. ठीक है, तो ज़्यादा पुश होने में क्या होगा? ये जो हाइड्रोजन ये लूजली बाउंडेड हो जाएगा तो इजी टू रिमूव. ओके, ठीक है, इजीली क्या होगा? निकल जाएगा. सो द ऑर्डर इज, सबसे ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप NO2, देन COR, देन SO2R, then CO2R, then CN, and then phenyl. Okay, this is the pattern of electron withdrawing group. Okay, clear? Okay, next. Now one. This is CH2, COOOOAT, COOOAT. Okay, now you can use base. Okay, hydrogen negative, COOOAT, OAT. Okay, this oxygen that should be delocalized. Now what happened? C hydrogen, the one CO negative, OAT, C double bond O, OAT.
Okay, that should be produced. Okay, now what happened? Similarly you can say this way, you can also see, आप ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी होता है, that is CH, that is double bond CO negative, OAT, okay, C double bond O, OAT. Actually all are resonance structure. Okay, now there must be this O negative charge can be delocalized and this way can be react with suppose R and this X eliminate. Okay, so what should be produced? That is CHR, or you can say RCH, C double OAT, C double OAT. Okay, तो this is the product. Okay, ऐसे आपका इनोलेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है. ठीक है. सो नाउ रिमेंबर दैट जो इनोलेट केमिस्ट्री है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो एल्डोल कंडेंसेशन में आता है. एल्डोल में भी आप बहुत सारा क्लासिफिकेशन देखोगे, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल के जैसा रिएक्शन होता है बहुत सारा, जैसे एसाइलोन कंडेंसेशन, पार्किन कंडेंसेशन, there must be so many reactions are there where you have to consider similar type of approaches. Okay, now first one, aldol condensation. Okay, CH2 C double O R. Okay, now you have to introduce base. Okay, so what should be you get? That is RC negative H C double O R dash. This O negative go this way, this go this way. That should be produced R. There must be H double C O negative R. Okay. So this negative go this way, and that should be go hydrogen X, and that is must be R double dash X, that should be eliminated. Okay, so what should be produced? That is must be R double dash C above the plane H dot H C above the plane H dot R and C double O R dash. Okay, this is produced. Okay, so by this way there must be this type of compound can be produced. Okay, आप अगर बोलना चाहते हो कौन सा ग्रुप अटैच हुआ है, ठीक है, सो रिमेंबर दैट जो ग्रुप अटैच हुआ है वो कौन सा ग्रुप है? Which group? This group. Okay, this group. Okay, that group that should be interacted. Okay, तो ऐसे आपका रिएक्शन प्रोसीड होता है. यहाँ पर कहाँ से कहाँ बॉन्ड हुआ? कार्बन से कार्बन बॉन्ड हुआ, ऑक्सीजन से कार्बन बॉन्ड नहीं हुआ. व्हाई? देयर मस्ट बी अनदर ड्राइविंग फोर्स इज देयर. कार्बन कार्बन बॉन्ड, there must be the carbon carbon bond strength that should be much stronger. Okay, because of low electrophilic difference. सेम एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक डिफरेंस तो होता ही नहीं है, राइट? तो दैट्स वाई कार्बन कार्बन बॉन्ड का यहाँ पर भी 2.5 होता है, यहाँ पर भी 2.5 होता है. सो उसका कोई इलेक्ट्रोफिलिक डिफरेंस ही नहीं होता है, टोटल कोवैलेंट बॉन्ड होता है. सो देयर मस्ट बी हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है. सो दैट्स वाई द कार्बन कार्बन बॉन्ड आर मच मोर स्ट्रॉन्गर देन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ओके, कार्बन कार्बन के बाद अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो कार्बन हाइड्रोजन फिर भी स्ट्रॉन्ग होता है, बिकॉज कार्बन इज 2.5 एंड हाइड्रोजन दैट शुड बी 2.1, sorry 2.1. so only the 0.4 difference. Okay, so that's why the after carbon carbon bond there must be carbon hydrogen bond also be strong.
but not such a like carbon-carbon bond. Carbon-carbon bond is more strong than carbon-hydrogen. Okay, and carbon-oxygen, obviously oxygen is much more electronegative. So the electronegativity difference of carbon and oxygen is much higher. So that's why easily to break. ओके तो कभी भी कोई रिएक्शन करो तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड प्रोड्यूस करने का कोशिश करना, कार्बन ऑक्सीजन का नहीं. जब भी कोई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है यू हैव टू फॉलो सम ड्राइविंग फोर्सेस. जैसे फॉस्फोरस ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, सिलिकॉन फ्लोरीन का ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, राइट. कहीं भी किसी भी जगह पे अगर कोई इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट ना हो, इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप ना हो, कोई भी ड्राइविंग फोर्स ना हो तो कार्बन से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है. Okay, so you have to follow all of these. Okay, thank you. Now acid catalyzed carbonyl compound. The first one there must be I will done, that is base abstract the proton. That means the previous reaction is base catalyzed reaction. अगर सपोज करो कोई भी बेस आप इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई भी हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो व्हाट शुड बी प्रोड्यूस? देयर मस्ट बी इनोल प्रोड्यूस, नॉट इनोलेट. कैसे? आपका जो फर्स्ट वाला कंपाउंड था जो COO suppose, तो देयर मस्ट बी इन फर्स्ट वाला कंपाउंड देयर वन हाइड्रोजन दैट शुड बी एब्स्ट्रैक्टेड, राइट. जो प्रीवियस रिएक्शन था वहाँ पर एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, राइट. आप अगर रिमेंबर कर सकते हो तो वहाँ पर एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हुआ था, पर अब हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेंगे. वी नेवर एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. ओके, एक होता है ना एक शक्कर देकर आपका मिठाई बनना और एक विदाउट शक्कर सपोज मिठाई बनाना, ठीक है. तो जहाँ पर भी डायबिटीज पेशेंट होता है वहाँ पर तो शुगर शक्कर कम ही यूज़ होता है. तो सपोज एज फॉर एग्जांपल इन योर फैमिली द एल्डर्स हैविंग द डायबिटीज, सो यू नेवर फॉलो द शक्कर इन द जो मिठाई होता है वहाँ पर आप शक्कर यूज़ नहीं किया, ठीक है. तो ऑन दैट केस व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, ठीक है. जो मिठाई होगा वो मीठा नहीं होगा, राइट. सो सिमिलर थिंग्स हेयर. तो हाइड्रोजन वी नेवर एब्स्ट्रैक्टेड हेयर. So what should be the product? They are only this क्या हो रहा है, ठीक है. हाइड्रोजन होगा और ए हाइड्रोजन होगा, ठीक है. सो दिस हाइड्रोजन माइट गेट इन दैट वे. ओके, बिना शक्कर का मिठाई, ओके, विदाउट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन द प्रोडक्ट. ओके, सो व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड? RCH double bond COH and these are dash. Okay, and remember that there must be the double bond is also there, OH is also there. Double bond means in, OH means all. So the ultimate product we have to say enol. Okay, this is called enol. And as there must be, you can use the acid. You can use the acid in the reaction for acylation of the process. So that's why this is called acid catalyzed aldol condensation. कंडेंसेशन भी कर सकते हो, कंडेंसेशन बाद में होता है, ठीक है. कंडेंसेशन करने का पहला स्टेप होता है इनॉल फॉर्मेशन. देन दिस इनॉल शुड बी रिएक्टेड इन सच ए वे, सपोज दिस वे, एंड देन react. Then we have to say this is called aldol condensation. यहाँ पर कोई भी condensation हुआ है, ठीक है. ये जो येलो वाला स्टेप कर रही हूँ इससे आपका aldol condensation हो रहा है. अब जो इनॉल तक हुआ तो वो एक इनिशियल स्टेप होता है जो इनॉल प्रोड्यूस होगा. उसके बाद इनॉल में और फिर से हाइड्रोजन का एक रेजोनेंस होगा. उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्ट करेगा कोई भी ग्रुप के साथ. देन यू हैव टू से दिस इज एज aldol condensation. And as the presence of acid, so that's why this is called acid catalyzed aldol reaction. And on the acid catalyzed aldol reaction there must be no base is used and no hydrogen abstraction can also be there, क्योंकि बेस ही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्शन करता है, कोई भी एसिड एब्स्ट्रैक्शन नहीं करता है, ठीक है. ओके ओके, नेक्स्ट. Now
there must be another thing you have to remember. CH2, CO280. What should be the actually compound behave like? That is CH2, that is COOET and COOET. What should be called as? दिस इज एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड. ओके, जो बीच का जो CH2 है वो दो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है. सो ड्यू टू COOET एंड COOET बोथ आर इलेक्ट्रो विड्रॉइंग नेचर. Okay, so that's why the middle CH2 is much more acidic. Normally CH bond is never be acidic because of low electromolarity difference. हाँ, कार्बन का 2.5 and हाइड्रोजन का 2.1 होता है. But when you have the so much electron withdrawing nature in the compound, on that case due to pushing of electron cloud, so on that case the hydrogen attached with the carbon behave like acidic proton. ओके, वो कहाँ पर ज़्यादा होता है? एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में होता है. जो मिथिलीन को वो एक्टिवेटेड हो जाता है दो इलेक्ट्रो विड्रॉइंग नेचर के लिए. ठीक है, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड मिथिलीन कंपाउंड. ओके, देयर मस्ट बी, यू हैव टू फॉलो बेस. दिस इज कॉल्ड बेस. ये सिग्निफाई क्या करता है? बेस. ठीक है, तो बेस एब्स्ट्रैक्ट द वन प्रोटॉन. And on that case, what should be produced? That is must be CH negative and COOET, and plus BH. Okay, but there must be the fact is there. What is? अगर सोचो आपका ए जो BH है, ए भी एसिड है, राइट? कारण बेस के साथ हाइड्रोजन अटैच हुआ है, तो ए कैसे बिहेव कर रहा है? ये बेस के जैसा बिहेव कर रहा है. क्यों? बिकॉज दिस ओ नेगेटिव, कार्बन नेगेटिव ऑलवेज टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन. जो C नेगेटिव कार्बन आयन प्रोड्यूस हो रहा है वो ऑलवेज यहाँ पर क्या करेगा? हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. स्टिल देयर मस्ट बी टू इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप इज देयर. यहाँ पर भी COOET है, यहाँ पर भी COOET है, मतलब कार्बन आयंस तो स्टेबल है, बट स्टिल कोई भी कंपाउंड ज़्यादातर टाइम चार्ज स्पीसीज की तरह बिहेव नहीं करेगा. वो न्यूट्रल होने का तो कोशिश करेगा, राइट? सो वो जो C नेगेटिव है वो एब्स्ट्रैक्ट करेगा. क्या करेगा? प्रोटॉन, राइट? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन शुड बी पॉसिबल इन द CH नेगेटिव COOET, right? So that should be behave like base. Okay, here this is behave like base, so obviously this should be behave like acid. Okay, and already I said there must be two electro withdrawing group is there, so this CH2 also behave like acid, right? So this is acid 1, this is base 1, this is base 2, acid 2. So what is the reaction like? Conjugate acid base pair. Okay, तो इसका conjugate base क्या है? ए है. इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या है? ए है. ए है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर. ये कहाँ पर हम पढ़ा है? आई थिंक मॉन्स्टेड लाउरी कॉन्सेप्ट. ओके, ऑफ एसिड बेस. ठीक है, तो वो बात अलग है. तो सोचो आपका ए जो BH है ये वीकर एसिड है, देन ए कंपाउंड, सपोज दिस इज ए कंपाउंड. ओके, दिस इज ए, देन ए बोला, देन ए, दिस इज एक्चुअली B कंपाउंड, देन ए, मतलब वीकर एसिड देन ए. ओके, ए से कम वीकर, ए से वीकर है. ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड प्रोड्यूस नहीं हुआ. ठीक है, ऑन दैट केस देयर मस्ट बी सम इक्विलिब्रियम कैन बी सेट अप. Equilibrium, this is the equilibrium can be set up. That is sometimes the reaction goes to forward, sometimes the reaction goes to backward. Okay, depend upon some many other factors. So sometimes goes to forward, sometimes goes to backward. ठीक है, ऐसा होता है. और ऑब्वियसली जब आप इक्विलिब्रियम पढ़ोगे तो आप लास्ट सटेलियर प्रिंसिपल पढ़ोगे, फैक्टर्स इफेक्टिव ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ोगे कि कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर में अगर चेंज करे तो इक्विलिब्रियम भी शिफ्टिंग होता है, कभी फॉरवर्ड में होता है, कभी बैकवर्ड में होता है. ठीक है, तो वो हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ पर पढ़ेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम जब होगा मैं कराऊंगा वहाँ पर पढ़ा दूंगा. ठीक है, ओके, नेक्स्ट. Now, next one. Okay.
रिमेंबर दैट बेस आर बेसिकली टू टाइप्स। आपका जब बेस आप इंट्रोड्यूस करोगे वहां पर एक होता है न्यूक्लियोफिलिक बेस, दूसरा होता है नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। न्यूक्लियोफिलिक मतलब जो आपका बेस के तरह भी काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम करेगा। द बेस व्हिच कैन बिहेव लाइक एज ए न्यूक्लियोफाइल कैन बिहेव लाइक एज ए बेस। ओके, आपको SN2 भी देगा या फिर आपको E2 भी देगा। ठीक है, बेस का काम क्या होता है? हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होता है, पर जब वो बेस न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव कर सकता है, देयर मस्ट बी द पॉसिबिलिटी इज देयर, सो ऑन दैट केस दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक बेस। ओके, लाइक OH माइनस, और भी है OH माइनस, सिंपल। वो आपका हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट भी कर सकता है या फिर आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव भी कर सकता है। दिस इज behave like as base, OH minus behave like as base, acid base reaction, and here SN reaction। ओके, तो एक हो रहा है आपका एसिड बेस हो रहा है, यहाँ पर एसिड बेस हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पर आपका SN रिएक्शन हो रहा है। मतलब OH minus behave like as a base, behave like as a न्यूक्लियोफाइल, both of the cases, but non-न्यूक्लियोफिलिक नेवर बिहेव लाइक एज SN तो नहीं देता है, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक के तरह बिहेव नहीं करता है। कोई भी न्यूक्लियोफाइल के जो नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, द बेस व्हिच आर नॉट बिहेव लाइक न्यूक्लियोफाइल ओनली एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन, नेवर बी अटैक ऑन द एनी ग्रुप। ओके, जैसे आपका क्या होता है, DMF होता है, सॉरी DMF नहीं, क्या बोले, DMF तो सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे आपका LDA होता है, और भी बहुत सारा होता है। ठीक है, मुझे अब क्या बोले, बहुत सारा ग्रुप होता है। LDA तो सिंपल है, और भी बहुत सारा होता है। और जो आप सॉल्वेंट काम करोगे इनोलेट और इनोल के तरह, वहाँ पर आप अगर सपोज करो कोई कौन सा सॉल्वेंट आप लोगे, ठीक है, ज़्यादातर याद रखना, बिकॉज आपका इनोलेट और इनोल बहुत ही सेंसिटिव टू एसिड बेस। ठीक है, वो क्या अगर इनोलेट हो जाए तो बहुत ही सेंसिटिव होता है H+ के लिए, राइट। वो ज़्यादातर केस में हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। और सॉल्वेंट अगर पोटोनिक सॉल्वेंट हो तो वहाँ पर हाई चांस होता है वो पोटोनेटेड हो जाता है। ठीक है, तो हम ज़्यादातर केस में कोई भी एल्कालेशन अगर करें इनोलेट से, तब ऑन दैट केस वी हैव टू यूज द सॉल्वेंट that is DMF, dimethyl formamide, DMSO, dimethyl sulfonamide, I think sulfoxide, and DME, that should be used. Okay, so they are basically inert and they are not a protic solvent, they are aprotic one. Okay, next one. This OSO2Me. Okay, they are CO2Me, CO2ET, sorry. So that should be, remember that there must be CH negative, suppose CO2ET, that should be react. Okay, cesium fluoride along with SN2 type reaction. आपका मित्सुनोबु रिएक्शन किया, मित्सुनोबु रिएक्शन में क्या होता है, मैंने किया है, मैंने करा है, वहाँ पर डेड यूज़ होता है, PPC यूज़ होता है, अल्टीमेटली आपका इन्वर्टेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, SN2 टाइप रिएक्शन होता है इन मित्सुनोबु रिएक्शन। मित्सुनोबु रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन द पॉइंट ऑफ व्यू CSIR NET, GATE and WB set, BARC, all of the exam. You have to remember some such of type of reaction. That is first one Mitsunobu reaction, second one aldol condensation, acyloin condensation, Perkin condensation, cross aldol condensation, Bauman blank reduction, Cannizzaro reaction, Ulf-Kishner reaction, TEPS reagent. You have to follow the और क्या होता है जो है होता है ना, क्या बोले, और भी बहुत सारे रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है ज़्यादातर आपका क्लेजन रिएजमेंट इंपॉर्टेंट होता है।
और ऑब्वियसली आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक वो सब तो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और जब आपका रिएजेंट पढ़ोगे वहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, आपका NaBH4 लूचे रिएजेंट एंड बोरेन, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट होता है। लिथियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। सो देयर मस्ट बी द रिएक्शन इज बेसिकली SN2 टाइप, लाइक मित्सुनोबु रिएक्शन। मित्सुनोबु रिएक्शन में क्या होता है, SN2 टाइप ही रिएक्शन होता है, पर वहाँ पर थोड़ा मैकेनिज्म अलग होता है, हटके होता है। वहाँ पर डेट यूज होता है, डेट में PPST जो फास्फोरस होता है वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट होता है। उसके बाद दूसरा जो नाइट्रोजन होता है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, और वो नेगेटिव चार्ज कोई जो अटैकिंग ग्रुप होता है बाहर से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। उसके बाद आपका अल्टीमेटली क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो देयर मस्ट बी ऑल्सो इन्वर्टेड प्रोडक्ट शुड बी प्रोड्यूस दिस वे, CO2ET whole twice this CO2ET. Okay, so there must be inverted product can be there. How you distinguish inverted product? There must be, you see, that is the above the plane. This is the above the plane. That means what? That is a dashed line. Sorry, this is the below the plane. Okay, above बोल रहे थे, ये below the plane होगा। और ये जो होता है इसको हम बोलते हैं wedge line. Okay, this is called above the plane. Above the plane. Okay, so this is the product. Okay, like Mitsuno reaction. Okay, now next one. Okay, now proceed. Okay, next one. Now suppose there must be Cl is there, this type of compound. Okay. Okay, clear. ET. Okay, so this product can be there. This is the possibility. This is the A possibility. Okay, another possibility, this and this. This is the B possibility. So there must be two possibilities there. Okay, if we proceed A possibility, what should be produced? Okay, CH CO2ET whole twice. Okay, there must be, this is A possibility. Okay, B possibility, what should be there? This CH CO2ET whole twice. This is B possibility. Okay, तो there must be two type of product formation can be possible here. Okay, एक होता है आपका डबल बॉन्ड में सीधा आपका लेस हिंडर साइड में अटैक किया जो A पाथ फॉलो कर रहा है, और दूसरा एक डायरेक्ट बैक साइड अटैक कर रहा है जो B पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। So on the basis of on this A and B, there must be two possibility can be there, that is A and B, two product will be produced. So what should be called, that is stereospecific or stereoselective reaction? What should we have to call that? That should be stereoselective, not stereospecific. एक stereospecific reaction वो होता है, suppose as for example एक ऐसा reaction नेट में आता है, ठीक है, यहाँ पर Br होता है, तो कोई भी आपका जब ग्रुप अटैच होगा तो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ज़्यादातर एक कार्बोकैटायन ही प्रोड्यूस होता है। Br चला जाता है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कार्बोकैटायन प्रोड्यूस होता है, राइट। सो ज़्यादातर केस में लोग क्या बोलेगा, कार्बोकैटायन जब प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर आपका रेसिमिक प्रोडक्ट होगा, या फिर आपका SN1 टाइप रिएक्शन होगा। SN1 टाइप रिएक्शन में क्या होता है, रेसिमिक प्रोडक्ट होता है, मतलब दो प्रोडक्ट होता है, राइट। पर यहाँ पर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि the three groups attach with that in such a way that is there must be the both side attack is not possible here.
यहाँ पर जो तीनों जो बिगर रिंग है, वो बिगर रिंग की वजह से आपका क्या होगा, आप बोथ साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा। जहाँ से आपका बिया निकल जाएगा, वहाँ पर ही कोई दूसरा ग्रुप आएगा। ठीक है, जो प्रोडक्ट होगा वो ऐसा होगा, ओनली वन प्रोडक्ट होगा। वो अबव द प्लेन था, यहाँ पर अबव द प्लेन था, तो यहाँ पर भी अबव द प्लेन ही होगा। कोई भी आपका ग्रुप हो, ए हो बी हो, ऐसा ग्रुप अटैच हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ग्रुप जो भी आपका ये इस बी आर की जगह होगा, वो ए ग्रुप या फिर आप सोचो एक्स ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट होगा। क्यों? स्टेरिक इक्विवेलेंस की वजह से। ठीक है, आपका 3 जो ग्रुप होगा वो ऐसे ओरिएंटेड है ना, जो बोथ साइड अटैक नहीं होगा, तो वहाँ पर आपका स्टिल कार्बोकैटन हो रहा है, स्टिल कार्बोकैटन हो रहा है, स्टिल SN1 हो रहा है, बट नॉट ए racemic mixture can be produced. Only one product that should be produced, and the product that should be in that oriented, जहाँ से आपका BR निकलेगा वहाँ पर ही दूसरा ग्रुप अटैच होगा। The same side the incoming groups that should be attached. In which side BR will be released? In that side only the incoming group that should be situated. Okay, no other product should be produced. That means there only one product is produced, and that is called not a stereoselective, that is a stereospecific. Okay, ये बात याद रखना, stereoselective मतलब वहाँ पर 2 प्रोडक्ट होगा, एक मेजर एक माइनर होगा। ठीक है, स्टीरियोपेसिफिक मतलब वहाँ पर एक ही प्रोडक्ट होगा, अब वो 100% प्रोड्यूस होगा, माने 100% एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलते हैं स्टीरियोपेसिफिक। पेसिफिक मीन्स पेसिफिक, एक ही प्रोडक्ट होगा। और सिलेक्टिव मीन्स 2 प्रोडक्ट होगा, एक मेजर एक माइनर, वो सिलेक्टिव होगा। रिजियो जो होता है, रिजियो सिलेक्टिव, रिजियो पेसिफिक, रिजियो सिलेक्टिव, रिजियो पेसिफिक जो टर्म होता है, याद रखना, पेसिफिक और सिलेक्टिव एक ही चीज़ होता है। रिजियो सिलेक्टिव मतलब वही एक ही चीज़ 2 प्रोडक्ट होगा, और रिजियो पेसिफिक मीन्स एक ही चीज़ एक ही प्रोडक्ट होगा। ठीक है, पर रिजियो का मतलब होता है एक स्पेस के वजह से होगा। ठीक है, the result should be space, and due to this space, if 2 product is produced, one major one minor, then we have to say regioselective. If one only product is produced, that is called regiospecific. That's it. Similar things, enantioselective, enantiopacific, similar things all that. Okay, enantiopacific बोल के कुछ नहीं होता है I think. Okay, next one. N मतलब क्या होता है? N कैन बी वैरी। जो मिडिल वाला CH2 है वो एक भी CH2 हो सकता है, वो 2 भी CH2 हो सकता है, 3 4 5 6 जितना हो सकता है। ठीक है, वो हमको पता नहीं है। ठीक है, उसके साथ क्या हो रहा है, आपका 2 मोल CH नेगेटिव CO2 ओके, और CH नेगेटिव CO2 होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो एक यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है तो BR निकल जाएगा, एक यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है ABR निकल जाएगा, तो क्या प्रोड्यूस होगा? आपका होल एन CO2 ये प्रोड्यूस होगा। ठीक है, राइट, तो दिस शुड बी द प्रोडक्ट फॉर्म। इनका वैल्यू ज़्यादा नहीं होगा, इनका वैल्यू 0 to 4 होगा, 0 to 4, 0 to 4। ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन, किसका रिएक्शन हो रहा है ज़्यादातर? जो CH नेगेटिव CO2 हो रहा है वो कोई कार्बन आयन नहीं है, वो एक्चुअली दे आर इनोलेट। ठीक है, मैंने पहले ही बोला जो CH नेगेटिव ए है ए इनोलेट के जैसे होता है, तो CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH एंड C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, वो नेगेटिव होगा, ऐसे होगा, मतलब क्या होगा? CO नेगेटिव COH, देयर मस्ट बी डबल बॉन्ड and C double bond OH, right?
and this negative that should be go this way, and this carbon that should be react. Okay, so actually this is the reaction of enolate, not a carbon ion. Okay, clear about that. मैंने शॉर्टकट ऐसे लिख रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं है वो कार्बन आयन है, वो एक्चुअली इनोलेट है. अल्टीमेटली कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहा है कोई भी अदर ग्रुप, बट कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, बट दिस इज नॉट ए कार्बन आयन, दिस इज ए इनोलेट. ओके, नेक्स्ट वन. Now we have to produce benzene intermediate. Okay, so there must be the question arises, what is benzene intermediate? आप बेंजीन देखते हो ना, बेंजीन में क्या होता है, sp2 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 एरोमेटिक सेक्सटेट प्रोड्यूस होता है, राइट राइट, एरोमेटिक सेक्सटेट होता है, पर स्टिल देयर मस्ट बी सम sp बॉन्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड दिस वे. Okay, again there must be some sp bond produced. So on that case, this sp bond that should be much more reactive, that all the rest part that should be only sp2, but this should be not a sp. Okay. Okay. There must be some sp bond can be produced. On that case, we have to say this is as a benzene, like that way. There must be double bond, but there must be triple bond, sp. Okay, and due to this, this extra डबल बॉन्ड जो एक्स्ट्रा एक और पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा लेवल ज़्यादा रिएक्टिव होता है. दैट्स वाई दिस स्पेसिस बेंजाइन इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, that are reacting, and that is due to this high reactivity never be so much stabilized, and that's why it should be behave like intermediate, that should be produced in between of reaction, that is after reaction, in between of reaction and after the product formation, the benzene that should be never exist. Either this benzene can be can be convert into benzene or other benzene derivative. ठीक है, तो बेंजाइन का जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है, जो sp वाला, जो ट्रिपल बॉन्ड का जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड होता है वो ज़्यादा लेवल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड वो रिएक्टिविटी के वजह से वो रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह बिहेव करता है. मतलब वो रिएक्शन में इन बिटवीन जो रिएक्शन होता है, मतलब जो प्रोसेस ऑफ रिएक्शन होता है वहाँ पर में क्या होता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है. ठीक है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन के बाद वो बेंजाइन के जैसा नहीं रहता है, इधर वो बेंजीन हो जाता है या फिर कोई भी बेंजीन डेरिवेटिव हो जाता है. ठीक है, ओके. तो दिस इज द बेंजीन. ओके, नहीं हुआ. ओके, तो देयर मस्ट बी ब्रोमोबेंजीन, and there must already one hydrogen, all the 5 hydrogens are still there. हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन 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 या फिर दिस हाइड्रोजन. ओके ओके, this NaH2, this is a positive, this is a negative. Now this hydrogen abstract, this bond that should be there and Br that should be leave. कैसे बाहर आता है दिस Br? एक्चुअली दिस Br बाहर NaBr like, okay, NaBr जैसे बाहर आ जाता है. ओके, नाउ देयर मस्ट बी बेंजाइन कैन बी प्रोड्यूस. आप जानते हो जैसे आपका बेंजीनिंग में आपका ए जो चीज़ है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको क्या सिग्निफाई कर रहा है, मतलब जो डबल बॉन्ड होता है वो लोकलाइज नहीं है, वो डबल बॉन्ड डीलोकलाइज है. ठीक है, एट ए मोमेंट आप जिसको आप सिंगल बॉन्ड की तरह देख रहे हो वो दूसरे मोमेंट में डबल बॉन्ड हो जाएगा. मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड दैट शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड द
लूप मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड का एक लूप है, ठीक है। वो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो इसलिए कोई भी एक जगह में बेंजीन का जो सिंगल बॉन्ड होता है वो दूसरे टाइम में वो डबल बॉन्ड हो जाता है। तो इसलिए इसको हम दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर की तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम, सॉरी, अगर आप इसको आप नेगलेक्ट कर दो तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रिपल बॉन्ड इसको अगर आप नेगलेक्ट कर दो तो ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सिमिलर टाइप, ओके, ठीक है। आप इसको भी मत देखो, ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है वो सेम है, ठीक है, क्लियर। ये जो चीज़ है और ये जो चीज़ है सेम है, ठीक है, ओके। सो नाउ CH नेगेटिव CO2 ET, इट कैन यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, यहाँ पर भी अटैक कर सकता है, बट यू नो जो बेंजाइन है वहाँ पर और कोई भी ग्रुप तो नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप में नहीं है, कोई एलिमेंट भी नहीं है। तो जो भी जिस साइड में ही अटैक करे अल्टीमेटली सेम टाइप चीज़ ही दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड, ओके। सोचो एज फॉर एग्जाम्पल आपके क्या बोले आप सोच लो आपका यहाँ पर कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो आपका जहाँ पर भी अटैक करे एक ही चीज़ होगा, ठीक है, सिंपल थिंग। तो सोचो यहाँ पर अटैक किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, राइट। तो व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, दिस इज नेगेटिव, ओके, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। क्या दिखा रहे दिस, तो व्हाट शुड बी प्रोड्यूस दिस negative charge CH CO2 AT, okay, whole twice produce, okay, and then you have to give some any type of proton source, आप कोई भी proton source दे दो, then there must be the this hydrogen abstraction can be there, so ultimately CH CO2 AT whole twice produce, okay. So this type of compound can be produced, okay, clear, okay. तो लास्ट एक क्वेश्चन करके हम आज के लिए छोड़ देंगे, नेक्स्ट आई विल अगेन कंटिन्यू, ओके ओके। नेक्स्ट वन, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन ऑफ CN, आप कोई भी ग्रुप में सपोज CH यहाँ पर एक नेगेटिव है, C ट्रिपल बॉन्ड है N है, तो वहाँ पर एक एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन होता है, कैसे, ऐसे, ठीक है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। ये आपका नाइट्रो ग्रुप में भी होता है, कैसे, जैसे आपका CH नेगेटिव N पॉजिटिव डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है, this way, okay, this is called also extended conjugation due to this functional group जो NO2 and CN, that's why the other type of resonance can also be possible in the throughout the functional group, that is called extended conjugation। आपका सब ग्रुप में नहीं होता है, क्लोरीन फ्लोरीन आयोडीन वहाँ पर नहीं होता है, वहाँ पर आपका वहाँ पर कोई ऐसा कोई जगह ही नहीं है कि आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो, ठीक है। पर नाइट्रो ग्रुप में होता है क्योंकि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है वहाँ पर में होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N होता है वहाँ पर में होता है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, ठीक है। और वो आपका जो नियर बाई नेगेटिव चार्ज होता है उसको स्टेबिलाइज करता है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रो विथड्रॉइंग ग्रुप ये लोग है, CN भी अच्छा खासा इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप है, NO2 भी अच्छा खासा इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप है, so obviously electron withdrawing effect there must be the carbon ion as well as enolate that should be stabilized, but still there must be due to some extended conjugation the stabilization that should be more favor, okay, here, okay,
Okay, so there must be double bond CN CO2 AT, right? Now you have to follow NaOET. Okay, there must obviously, you know, here hydrogen is there, and this hydrogen that should be abstracted. So carbon anions produce, so double bond CN CO2 AT. Okay, so this negative charge delocalize in that way. Okay, so what should we produce? This CN. आप CN को ऐसे भी लिख सकते हो, ट्रिपल बॉन्ड N. ओके, एंड C डबल बॉन्ड OET. आपका ये भी दिमाग में आ सकता है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर भी आपका डीलोकलाइज हो सकता है, पर याद रखना आपका CO2 ET से आपका CN में ज़्यादा और एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हो कि ऐसे हुआ, ए ग्रुप निकल गया, तो ए ग्रुप नहीं निकलेगा. ठीक है, यहाँ पर OET नेवर बिलीव. ओके, तो ये अलग बात है. CO में भी थोड़ा बहुत जाता है, पर ज़्यादातर केस में CN ज़्यादा स्टेबलाइज करता है. ठीक है, तो वो नेगेटिव चार्ज दैट शुड बी गोस इन दैट वे. ठीक है, एंड अगेन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. CO में भी जा सकता है, ठीक है, पर CO में जा सकता है नॉर्मली, पर एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन बाय CN बोला, तो CN के वजह से और भी ज़्यादा कॉन्जुगेशन होता है. ठीक है, ये बात याद रखना. जो पिछले बात बोला OET निकल जाएगा, वो वहाँ पर बहुत ही कॉन्फ्लिक्शन है. सो दैट शुड बी नेवर फॉलो दैट इज CO2 ET. यस, CO2 ET के वजह से आपका एक एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन होता है, पर CN के वजह से वो और भी ज़्यादा एक्सटर्नल कॉन्जुगेशन होता है और भी ज़्यादा स्टेबलाइजेशन होता है. ठीक है, तो ये बात याद में रखना. ठीक है, ओके. नेक्स्ट वन, डबल बॉन्ड एंड C डबल बॉन्ड N, C डबल OET OET. ओके, यहाँ पर एक और नेगेटिव चार्ज होगा. मैं नीचे में लिखा है क्योंकि ऊपर में OET है, क्लास होगा. ठीक है, वहाँ पर यहाँ पर ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए वहाँ पर याद रखना जब आप क्या बोले. ठीक है, मैं ऊपर में ही लिखती हूँ दूसरा कोई कलर देखकर, जैसे यहाँ पर. ठीक है, ये याद रखना कि इनके मस्तक में नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, तो याद रखना, रिमेंबर दैट दिस नेगेटिव चार्ज दिस वे. ओके, this negative charge this way, this negative charge that way, this negative charge in that way, and this negative charge can be react with Me, that is del positive, and I, that should be del negative, so that should be removed. Okay, so what should we produce? CN CO2 ET and Me. Okay, तो this is the product. ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपका रिएक्शन होता है. तो नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट विद अगेन इनोलेट केमिस्ट्री, एंड इनोलेट केमिस्ट्री इज वेरी मच वाइटल वन फॉर CSI and NET. कैरोथर्स से करा रही हूँ. कैरोथर्स का हर क्वेश्चन, हर रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, सॉरी, my channel, that is Upper Chemistry in YouTube channel, Upper Chemistry in Facebook group. 2 Facebook group है, एंड अपूर्व हो ऐसे एजुकेशन कंसल्टेंट एक है, प्रोफाइल है. उसके बाद एक इंस्टाग्राम है Upper Chemistry, थ्रेड Upper Chemistry. सो यू कैन फॉलो ऑल ऑफ दिस. ओके, सो थैंक यू सो मच. ओके.